السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار يقلب الله الليل والنهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل، اس کا کرم کہ ہمیں دین سیکھنے سکھانے کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بخشا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کائنات مجھے حق بولنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق اور عطیہ عطا فرمائے۔ گزشتہ اتوار میں نماز شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور سنن کیا ہیں، اس کے تعلق سے بیان ہوا تھا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ 40 پر 8 رکعتوں کا بیان، جو فجر سے لے کر عشاء تک ہم جو پڑھتے ہیں، 2 رکعت میں فرض بھی آتے ہیں، 2 رکعت میں واجبات بھی آتے ہیں، 2 رکعت میں سنن بھی آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 2-3 مثال بتا دو۔ اللہ اکبر یہ کہنا فرض، قیام فرض، رکوع فرض، قرات فرض، سجدہ فرض، قاعدہ اخیرہ فرض، خروج بسمعہ یہ فرض ہے۔ واجب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، 2 رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونا، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، التحیات پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اور تسبیح، رکوع، سجدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب سنتیں ہیں۔ اب ہمیں 2 رکعت میں سب ملے کہ نہیں ملے؟ فرض بھی ملا، واجب بھی اور سنت بھی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک ٹھنڈ کا وضو، ایک دھپکانے کا روزہ۔ اس میں انسان اپنی کاہلی کو قربان کرتا ہے۔ جب صبح میں بستر چھوڑ کر اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے کا موقع آیا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے، پھر اس کے بعد آ کر مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کم بولو بھائی، کتنے رکعت ہونا کم سے کم؟ نیند تو قربان ہو گئی، ٹھنڈ میں وضو بھی ہو گیا، کم سے کم 12 رکعت تو ہونا، نہیں 8 رکعت تو ہونا، مغرب کے جیسا 7 رکعت تو ہونا نہیں، کہتے ہیں 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ یہ 4 رکعت پڑھنے کے واسطے نیند قربان کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو بناؤ اور مصلی پڑھو۔ یہ 4 رکعت اس کے کو رکھے اللہ تعالیٰ، اس کی حکمت کیا ہے بولے تو ہمیں سمجھ میں آیا۔ کتابوں میں علماء کرام حکمت بیان کرنے والے علماء بیان فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہاں 4 رکعت، 17 رکعت، 12 رکعت، 7 رکعت، 8 رکعت پڑھانے کا نہیں ہے، مسئلہ بندے کو مصلی تک لانے کا ہے۔ وہ اپنی نیند کی قربانی دے گا یا نہیں دے گا، اپنی کاہلی کی قربانی دے گا یا نہیں دے گا، اپنی سستی کی قربانی دے گا یا نہیں دے گا۔ بس یہ جو ایگزام میں جیسے امتحان پہلے بستر سے اٹھنا امتحان تھا، اٹھتا کہ نہیں اٹھتا، اٹھا تو ایگزام پاس۔ اور وضو کے لیے پانی کی طرف گیا، اس میں دیکھا کہ چوائس ہے، چاہے تو گرم کر کے بھی، چاہے تو ٹھنڈا پانی سے بھی، مگر وہ حدیث مبارکہ ہمارے ذہن میں آئے گی کہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا رب کو بڑا محبوب ہے،
تو اس وقت اپنی کاہلی کو قربان دے کرے گا نا. اب یہ قربانی اللہ کو ہونا. اپنے مفہوم کی طرف آتا ہوں. آج کا مفہوم یہ ہے 40 پر 8 رکعت جو 5 وقت کی نمازوں میں ہے، اور اس میں کون سی نمازیں ہمیں کمپلسری پڑھنا ہے اور کون سی نمازوں کو چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، وہ کون سی ہے پہلے سے شروع سے پڑھتا ہوں. مسئلہ نمبر 1، فجر کی سنت جو سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ میں ایک ایسی سنت ہے، جو سنت فجر ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب فجر کے فرض سے پہلے والے 2 رکعت سنت ہے. تو یہ 20 منٹ نماز ہمیں نہیں پڑھیں گے. کون سی؟ سنت بھی نہیں پڑھیں گے جو ہمیں فرض سے پہلے چک گئے تھے وہ، اور کوئی نفل طلوع آفتاب سے لے کر پورا سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نہیں سوائے سنت فجر کے. صبح کی جیسے مثال کے طور پر موٹے انداز میں ہر روز سحری کا وقت آتا. موٹے انداز میں کیسا معلوم کر لینا سحری کا وقت ہمارا بولے تو ہماری مسجدوں میں آسانی کے لیے جو اذان کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 10 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا. سحری کا وقت ختم ہوا اس کا مطلب ہی یہ ہوتا کہ سحری کا وقت ختم، صبح صادق شروع. اس میں 2 صادق رہتے ہیں، صبح کے 2 حصے رہتے ہیں. ایک صبح کاذب ہے، ایک صبح صادق ہے. صبح کاذب میں سحری کا وقت ختم. سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہو جاتا طلوع آفتاب کے بیچ میں طلوع شمس جسے بولتے نا اس سے پہلے کا جو وقت ہے اسے کیا بولتے؟ صبح صادق. اس کے آنے کی وجہ سے اعلان ہوتا ہے، وہ اعلانیہ طور پر اذان دی جاتی. ہمیں آسانی طور پر یہ کر لینا جو تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی رہتے لوگ وہ اکثر فجر کے اذان کے 10 منٹ پہلے جو اذان ہو رہی نا اس سے پہلے سمجھ لینا کہ ہمارا سحری کا وقت ہے. ایک وقت ہے تہجد کا. اب یہ اذان ہو گئی اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنا. کب تک؟ 7 بجے تک. پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قضاء سنت جو ہماری قضاء ہو گئی تھی سنت، تو وہ سنت پڑھ کے چاہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. اس میں قید ہے کہ طلوع فجر میں یعنی صبح صادق کا شروع ہوتے ہی طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ فرض پڑھنے سے پہلے وقت اخیر ہے تو فرض سے پہلے سنت پڑھنے کی اجازت ہے، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو بولیے ایک سنت ہے جو فجر کی سنت فرض سے پہلے والی 2 رکعت. اب ایسا ہوا فجر کی نماز کو ہم اٹھے نہیں، اچانک ہماری آنکھ کھلی 7 بج گئے تھے. اب بولو فجر کی نماز ادا ہے کہ قضا؟ ہمارے مسلمان مردوں میں میں کچھ ایسے باتوں کو سنا ہوں جسے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ بھی حیرت میں پڑ جاتے. وہ کیا ہے معاملہ بولے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز ادا ہوتی. 1:30 بجے جماعت ہے مسجد میں، 2:40 ہو گیا، 1:40 ہو گیا، 1:40 ہو گیا تو بھی نماز جماعت ہو گئی رہتی. نماز جماعت ہو گئی تو کیا ہوا؟ نہیں خدا میں پڑھ لیتا ہوں اثر کو. اصل غلطی کیا ہو رہی وہاں؟ ذہن میں فٹ ہوگی بات کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو ادا، جماعت چوک گئی تو قضا. اصل ویسا نہیں ہے معاملہ. فجر کا ٹائم آج میں بولا نا 6:40 تک پڑھ سکتے. اس میں جماعت کے ساتھ پڑھو یا اکیلے پڑھو تو 6:40 تک پڑھ سکتے. 5:40 تک بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی نماز کا ٹائم 5:40 تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد غروب کا ٹائم ہے 20 منٹ، اس میں 20 منٹ نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد غروب ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا. تو عصر کا ٹائم کب تک رہا؟ 5:40 تک رہا. اگر نماز ہماری سنت کے ساتھ فرض بھی قضا ہو گئی صبح میں 7 بجے ہم اٹھے تو ایسا انسان جب اٹھیں گا 7 بجے تو اس کے واسطے ٹائم اس کا وہی 6. سو کر اٹھنے والے کے واسطے اور بھولے سے انسان کو یاد آ گیا تو اس کا نماز کا وقت وہی 6. ثبوت کے طور پر ایک حضور علیہ السلام کی پاک زندگی میں بھی ایک واقعہ ایسا گزرا. وہ کیسا؟ جنگ سے واپس آ رہے تھے ساز و سامان کے ساتھ. پہلے تو ہمارے ساتھ پاس گاڑیاں ہیں، لاریا ہیں، بسا ہیں، سب ہیں.
मगर हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में सब नहीं था सहूलत। अब तुम्हें सब ख्याल करो, जंग में लड़े सो थके, वक्त को नमाज पढ़े, फिर वहाँ से खाना वगैरह खा ले को, वहाँ से ऊँट आपो, घोड़े आपो, खच्चर आपो, अपने सामान रखने को आए, सफर में एक जगह रुके। अब रुकने का टाइम कैसा है? वो 3 बजे का टाइम, रात के 3 बजे का टाइम है। ऐसे वक्त में साजो सामान ऊँटों पर, जानवरों पर है। अब तो अनखरीब आप सो गए, किसके किसके खैमे में चले गए तो फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। ऐसे वक्त में हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, हजरत बिलाल को रुकाते, सामानों के बीच में खड़ा करके कहते कि तुम देखते हुए इंतजार करो, थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त, जो सुबह सादिक का वक्त आता, जब हमारे को जगा लेना। होता क्या मालूम, हजरत बिलाल देखते 3:30, 4 बजे, 4:30 बजे अजान का करीब टाइम शुरू, आफ्ताब का टाइम शुरू हुआ, सुबह सादिक का टाइम शुरू करीब में रहा। हजरत बिलाल की भी आंख लग गया, सब उजाला हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के खैमे से उठते, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने खैमे से बाहर निकलते, बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के पास आते, ऐ बिलाल तूने क्या किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का थका हारा था, नींद लग गई। अब देखो नींद लग गई तो इसमें फतवा हुजूर अलैहिस्सलाम का ये नहीं कि जब गुनाह सारों का तेरे सर पर आया, ऐसा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, चलो पहले जगह खाली करो, ये जगह शैतान की है, खाली करो। ऐसे सामान सब ले जाकर दूसरी जगह पर, वहाँ अजान भी होती, जमात के साथ नमाज भी पढ़ते। बहरहाल अब फजर की सुन्नत फर्ज के साथ कज़ा हो गई। अब देखो ख्याल करना है कि 11:30 बजे के अंदर पढ़ रही तो ख़ज़ाए सुन्नत भी पढ़ना है, ख़ज़ाए फर्ज भी पढ़ना है। सुबह में 9:30 बजे दुकान खुल जाते, तो उससे पहले क्या करना है, नाश्ते से पहले वजू बना के 2 रकात ख़ज़ाए सुन्नत पढ़ेंगे, फजर के ख़ज़ाए फर्ज पढ़ेंगे। नहीं साहब, वो हाफिज़ साहब बोले थे खाली फर्ज, आपको फर्ज की तो ख़ज़ा होने का, सुन्नत की ख़ज़ा नहीं, 11:30 बजे के अंदर पढ़ने का। या तो फजर की नमाज की जो सुन्नत है वो उसकी सब ख़ज़ा पढ़ते, तो सिर्फ फजर की नमाज के वास्ते थे वो, बाकी नमाजों के वास्ते नहीं है। दूसरा मसला, ज़ोहर के 4 रकात फर्ज से पहले वाले 4 रकात, इसे क्या बोलते हैं, सुन्नत मुअक्किदा बोलते हैं। ज़ोहर के 4 रकात फर्ज हो गए, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ते, उसे भी क्या बोलते हैं, सुन्नत मुअक्किदा। अब ये सुन्नत मुअक्किदा किसे कहते हैं, तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम जिस सुन्नत को अक्सर पढ़ा करते थे, पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे, जिसके लिए हुक्म फरमाए, उसे सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं। और सुन्नत गैर मुअक्किदा किसे कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम कभी वक्त मिला तो पढ़ लिए, अभी कभी तो वक्त मिला नहीं पढ़े, तो उसे क्या बोलते हैं, सुन्नत गैर मुअक्किदा। ये सुन्नत गैर मुअक्किदा कब है हमारी, असर के 4 रकात फर्ज से पहले वाली, इशा के 4 रकात फर्ज से पहले वाली। अब मैं तुम्हारे को सब ये देखो, मैं बोलता हूँ उसी नमाज तुम्हें उसकी निशानदही करना करते। पहली रकात में बना सना औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम का सूरा, पहली रकात में वल असर, अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात अलहम के सूरे के बाद इन्ना आतेना, रुकू सजदा, सजदा उला, तशहुद, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में अलहम के सूरे के बाद, तीसरी रकात ना, तीसरी रकात में अलहम के सूरे के बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर रुकू और सजदा। चौथी रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। अब बोलो तुम्हारे ज़हन से, तो ये कौन सी नमाज पढ़ा मैं 4 रकात? असर की गैर मुअक्किदा पढ़ा 4 रकात। कैसा तुम्हारे समझ में आया मुझे, तुम्हें क्या बोलते हैं, तो शायद तुम्हें 4 रकात में भी सूरा मिला है, इसके वास्ते न समझ में आया या सुन्नत है ये। कहीं तो ऐसा बोले तो नहीं, फर्ज ही आता, तुम्हें क्या करके ज़ोहर के 4 रकात फर्ज पढ़ रही, या असर के 4 रकात फर्ज पढ़ रही, या इशा के 4 रकात फर्ज पढ़ रही, तो पहले 2 रकात में सूरत मिलाते थे, तीसरी और चौथी में सूरत नहीं मिलाते थे। तुम्हें 4 सूरत पढ़े सोचते मैं सुन्नत बोल को कंफर्म हो गए, पक्का बोलो सुनो। अब उसमें सुन्नत मुअक्किदा और सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ने में भी इम्तियाज है, अलग अलग वो तरीका। वो क्या, सुन्नत मुअक्किदा जो फजर के अलावा ज़ोहर में जो आते हैं ना 4 रकात वाले, वो 4 रकात सुन्नत में बोले सरकार वो तरीका है।
असर के 4 रकात फर्ज से पहले वाले जो 4 रकात सुन्नत है, सुन्नत गैर मुअक्किदा, उसमें 2 फर्क। पहला फर्क क्या है? कायदा उला में बैठते तशहुद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बोलते। क्या करते थे? हमें जोहर के उठ को ठहरते थे। ये असर और इशा के सुन्नत में उठ को नहीं ठहरना, दुरूद इब्राहिम पढ़ना, पहला फर्क। दूसरा, तीसरी के बाद से उठ को ठहरे, शुरू में सना पढ़ना, दूसरा फर्क है। अब मैं तुम्हारा तरीका क्या बोला? कायदे उला में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ के उठ के ठहरा, बोले तो तुम्हारा समझ में आना अच्छी। ये सुन्नतें गैर मुअक्किदा पढ़ रहे, असर के और इशा के 4 रकात फर्ज से पहले वाले, समझ में आना। तो हर नमाज के लिए उसका कायदा भी अलग है। अब मैं तुमको अकीदे के वास्ते उसके सबूत के तौर पर बता दूं कि अगर फर्ज वितर या सुन्नत मुअक्किदा, ये 3 के अलावा जो भी हमें नमाज पढ़नी 4 रकात वाली, तो उसमें ये 2 फर्क रहना चाहिए। ये 2 फर्क क्या है? कंपल्सरी हमारे को करना चाहिए। 4 रकात नफल या तहज्जुद के पढ़ रही, या सलात हाजत के पढ़ रही, या सलात तौबा के पढ़ रही, 4 रकात नफल पढ़ रही, तो ये नफल में भी कायदा ये चलेगा। पहले कायदे में तशहुद के बाद सीधे उठकर नहीं खड़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ के उठकर खड़ेंगे, तीसरी रकात के शुरू में सना पढ़ेंगे। ये 2 फर्क हो गए। ये 40 पर 8 रकात में। अब बोलिए सुन्नत मुअक्किदा कौन सी नमाज में है? फजर में, ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में। कितने रकात है? पूरे 12 है। कितने हैं? फजर के 2, ज़ोहर के 6, मगरिब के 2, इशा के बाद वाले 2, कितने में? 12 हो। अब 40 पर 8 रकात में ये 12 रकातों को निकाल देंगे। कितने बचे? 30 पर 6। 30 पर 6 में सुन्नत गैर मुअक्किदा 8 निकाल देंगे। 20 पर 8, 20 पर 8 में से 17 फर्जा निकाल देंगे। कितने नमाज आ गई? वाजिब के 3 निकाल देंगे इसमें से। कितने बचे? 8। अब ये 8 रकाती नफिल नमाज है हमारी। कितने? अब हमें इशा की नमाज पढ़ने के लिए बैठे, तो इसमें से हमें कितने रकात कंपल्सरी पढ़ना है? कंपल्सरी पढ़ना है। 17 रकात में वो कौन सी रकातें हैं जो हमें कंपल्सरी पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़े तो पकड़ आती है। माशाअल्लाह। कितनी रकातें भी? 9 रकातें। कितनी? 17 से 9 को आ गए। 9 सुबहाती यमना रिज़्क़ा, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। उठो, नमाज पढ़ो। ये मकरूह टाइम जो 20 मिनट का है नहीं, उसमें जिक्र करोगे। इस बात पर हदीस मुबारका याद आ रही, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारी आदत मुबारका थी कि जब भी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बीच में अपने घर के बगल ही में सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान था। दरवाजे को दस्तक देते, अस्सलातु या अहलल बैती, ए मेरे घर वालों नमाज का टाइम हुआ। उस वक्त सैयदा कायनात मुसल्ले पर चलते थे, ऐलान करके नमाज पढ़ाने जाते थे। एक बार का मौका ऐसा हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाकर वापस आए तो देखा सैयदा कायनात पढ़ते ऐसे ही अपने मुसल्ले पर लेटी हुई। उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम ठोकर मारकर सैयदा कायनात को जगाते हैं। कहते हैं फातिमा उठो, ये रिज़्क़ बंटने का टाइम है, इस वक्त सोया नहीं करते। तो उठना, जिक्र करना, ये सिस्टम जो इस्लाम रखा सो है। फजर की नमाज अदा करने के बाद इशराक की नमाज तक जिक्र में बैठे रहो। में आज की दर्स में हमें क्या मालूम हुआ? सुन्नत मुअक्किदा में 2 किस्म है। एक सुन्नत फजर जो 11:30 के अंदर पढ़ना है, तो वो भी हमें उसकी भी क़ज़ा पढ़नी होगी। अब ज़ोहर के 4 रकात फर्ज से पहले वाले जो 4 रकात सुन्नत है, वो सुन्नत मुअक्किदा है। अब हमारी आदत अक्सर आप लोगों को देखा होगा, आपने, मैं भी देखा, रकात बांधने के बाद जमात में आके शरीक होते लोग। ऐसे आदमी देखे गौर करको जो रकात पढ़ को भाग जाए। बहुत फिक्र की बात बताने जा रहा हूँ। जोहर की जमात के टाइम को आते, एक रकात भी हो जाती कभी कभार नहीं, वजू बना लेके वापस अंदर, सीधा अंदर मस्जिद में आ रहे, दाखिल हो रहे, इकामत होते रहती, सीधा आपको रकात में, पहले रकात में मिल जाते तकबीर तहरीमा के साथ होता। मगर सलाम के बाद जो इमाम साहब दुआ मांगते हैं, उसके बाद कितने रकात पढ़ रहे?
बस चलो गए। अब बोलो, ये जो सुन्नत छोड़ने की जो हमारी आदत बन गई जोहर की, ये सुन्नत मौक़िदा है। ये सुन्नत मौक़िदा वो है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पाबंदी के साथ अदा भी करे और हुक्म भी लगाए। ये सुन्नत को छोड़ने का आदी इंसान अपने आप को सुन्नी नहीं कह सकता। जोहर की बात बता रहा हूं, जोहर के 4 रकात सुन्नत जो है वो छोड़ने की आदत बना लिया, वो अपने आप को सुन्नी कहने से पहले आईनक में सूरत देख लेना। जोहर के सुन्नत में अदा करूं क्या नहीं, नमाज की हालत में चेहरे का मामला तो मामला है बाबू, वो भी सुन्नत ही है ना। नहीं, ये सुन्नत जो फजर नमाज में मिलती है हमारे को सुन्नत, ये सुन्नत मुअक्किदा है। ये कुछ लोगों को ऐसे भी आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, बरस पढ़ते पिक्चर निकलते बाहर, वही साहब क्या लाखों का फायदा होता कि बाहर जाने का, 2 रकात से 2 से 2.5 मिनट में पढ़ लेते जी। वो टाइम भी नहीं है हमारे पास। फिर कौन सी सुन्नत है वो? सुन्नत मुअक्किदा छोड़ने की आदत बना ली। तो ऐसे आदत बना लेने वाला इंसान अपने आप को सुन्नी कह रहा, तो आईनक में सूरत देख लेना नहीं। इसीलिए ये बातें मैं आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें हमारी मस्जिदों में हमारे मुसलमान भाई करते हुए नजर आ रही। हो सकता हमारी जुबान से निकला हुआ एक जुमला भी उनकी आवाज से एक जहन में पहुंच गई बात, भाई हमारे को नहीं मालूम था ये सुन्नत मौक़िदा है कि कंपलसरी पढ़ना है। नहीं लो, मैं पढ़ तो हूँ, फर्ज हो गया, इमाम साहब पढ़ा दे, 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद 4 रकात पढ़ को जाता हूँ आपसे करता, वैसा भी नहीं सोचना। उसमें उलमा के 2 कौल है। एक कौल ये है कि जो सुन्नत ज़ोहर जो 4 रकात है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की प्यारी आदत ये थी कि फर्ज से पहले पढ़ते थे उसे। दूसरी बात एक उलमा का कौल, इसलिए वो पहले पढ़ेगा तो उसे सुन्नत का सवाब मिलेगा, फर्ज के बाद पढ़ेगा तो उसे सवाब नहीं मिलेगा बोले ये उलमा। दूसरे उलमा, दूसरी जमात अहले सुन्नत जमात की, उन्होंने क्या बोले, हाँ वो पढ़ेगा तो हुजूर की सुन्नत तो नहीं थी, मगर सुन्नत की नियत से तो जो अदा कर रहा है उसके लिए उसे आधा सवाब दिया जाएगा। अब उसमें भी घाटा है, इसमें भी घाटा है। इसलिए बेहतर यह है कि 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा जो है ज़ोहर में 5 मिनट पहले वजू के साथ 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। अगर वजू से नहीं है तो कम से कम 10 मिनट पहले पहुंचे, ज़ोहर से पहले होकर वजू बना के मस्जिद में जाके 2-4 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद जमात का टाइम हो। और एक बात खासकर, इमाम के पीछे ये जो जगह होती है उस पर आपने देखा होगा, इमाम के पीछे जो खड़ा होता है उसे कहते हैं सानी इमाम। उन्नत मौज़न साहब भी हो सकते, कोई और भी हो सकते, इकामत बोलने वाले भी हो सकते। अब यहाँ से जो इमाम है इसके पीछे नमाज पढ़ने वाला जो इंसान है कोई भी हो, अल्लाह की रहमत नाजिल होती पहले इमाम पर। रहमत का सिस्टम देखिए, इमाम पर अल्लाह की रहमत पहले नाजिल होती और इमाम के पीछे ठीक पीछे जो खड़ा है उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती। फिर उसके बाद सीधे तरफ जितने खड़े उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती। फिर उसके बाद दावें तरफ जितने खड़े उन पर अल्लाह की रहमत। फिर अब यहाँ खत्म हो गया तो ऐसा आना, तो ऐसा नहीं, फिर इमाम के पीछे वाले के पीछे खड़ने वाले के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती। तो ये तरीका है। इमाम साहब सामने पीछे खड़े से हमें पहले सब जा रहे हैं, यहाँ कहते हैं 5 लोग ठहरे से, यहाँ 2-3 लोग खड़े, अब कहाँ ठहरना है? 2-3 लोग कहाँ ठहरे, वहां जाकर खड़ना है। तो इसकी फजीलत ज्यादा है नहीं, इसकी फजीलत ज्यादा है बोले तो पूरी वही बनाना नहीं, बैलेंस देख लेना पहले। यहाँ 4-5 आदमी है तो पहले ये जगह खाली दिखी तो इससे भी जाकर करना, क्योंकि ये आदमी जो खत्म हो रहा तो खत्म होने के बाद रहमत का हिस्सा हमारे कुछ मिलने वाला है, जब तक वो लेंगे दूसरा नहीं आता। और एक मतलब, इमाम अब हम नमाज पढ़ रहे तो हमारे सामने से कोई गया तो गुनाह है कि नहीं? इमाम साहब वहां अंदर नमाज पढ़ा रहे, हमारे सफा यहाँ है, इमाम साहब के पीछे से अब यहाँ ये लाइन में खड़ने वाले को वजू टूट गया, मैं इशारा करूँ समझ जाओ, वजू की हालत से टूट गया, अब मैं बाहर कैसे जाना? सानी इमाम कुछ खुदा ना खासा ऐसा वजू टूट गया, सानी इमाम कैसे जाना? पीछे वाले को आगे कर को ऐसा नहीं करना, ऐसे पीछे निकल जाना। सानी इमाम के अलावा दूसरे मसले वाले दूसरे उनका मसला अलग है, इधर बाजू वाले का वजू टूट गया, इधर बाजू वाले का वजू टूट गया, तो उधर वाला
सीधे उधर से आखिर में चले जाना। इमाम साहब यहाँ है, इसके पीछे लोग खड़े, यहाँ वाले का वजू टूटा तो इन्हें यहाँ 2 आदमी बाकी है अभी दीवार के, इधर वाले का वजू टूटा तो इन्हें क्या करना, सामने से निकल जाना, सामने से निकल जाको जा सकते। तो ये जमात के साथ नमाज पढ़ने का मसला है। ये पीछे मुख्तदियों के बीच में से अक्सर तुम्हें देखेंगे काबे के अंदर जमात के साथ नमाज होते नहीं थे, वहाँ जो बब्बाबा है थे, बब्बा उन नमाजों के बीच में से फिरते रहते, देखे थे वीडियोस में कभी, मक्के में भी वो कई को बोले थे ये मसला है। मसला क्या है बोले तो, जब तुम्हें अकेले नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारे बीच में और रब के बीच में कोई नहीं आना। जब जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा मामला नहीं है, अब इमाम का है, ताबे इमाम के बोलेंगे आप, तो इमाम के क़िबले के साथ तुम्हारी नमाज जुटी है। अब इमाम के सामने से नहीं जाना, मुख्तदियों के सामने से जा सकते। अब जा सकते बोले तो कैसे शुरू कर देंगे, वैसे नहीं, पब्लिक को नहीं मालूम है मसले क्या, मैं नमाज के सामने गया, नमाज के बाद लड़ी पड़ती फिर इसके वास्ते पब्लिक को पहले मालूम हुआ था, टाइम पकड़ता, मालूमात करा को गया समझ में आता। अब ये हालत में हमारा वजू टूट गया, पीछे वाले को हमें इशारा करेंगे, अब क्या करना भाई, बोलने आता शर्म की बात, इसे क्या करना, खाली इशारा तक उंगली पर, ये इशारा हमारा नाक पर उंगली रखेंगे ऐसा, सामने वाला समझ जाना। अब उसे मालूम है ना तो ये उंगली यहाँ रखे तो इसके वास्ते ये इस्लाम हर मोड़ पर हमारी रहबरी कर रहा। हमें क्या कहता भाई आज नाम रखी की दावत है, पूरी आते हैं सबके सब, ये मसले मसाइल सीखने के वास्ते 2 4 6 8 9 जने हैं, ये बरीक मसले। अब नमाज की हालत में ऐसे तुम्हें हरकत मैं बोले सर कानून के ऊपर अमल करें तो सबसे बड़े गुनहगार तुम्हें हो जाते हो। मालूम नहीं बेचारे को, मालूम करना। अकेले पढ़ रही, हमारे आगे से कोई नहीं जाना, इमाम के साथ नमाज पढ़े तो आगे से पीछे से कोई भी गया तो हमारे ऊपर कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हमें ताबे इमाम के गए कि इमाम के खुतुब के साथ, इमाम के क़िबला रुख होने के साथ अपनी नमाज को जोड़ लिए। अब हमारा क़िबले का रुख इमाम के साथ जुड़ा हुआ, समझ में आई बात। उसी तरह अगर इमाम कुछ वो हालत होगी, इमाम कुछ वो हालत होगी तो उन्हें क्या करना, पहले पलट को मैं बोला नहीं, वो इशारा करके हाथ पकड़ के घसीटते हुए उसे, अगर उन्हें नहीं आता गया तो भी से घसीटते हुए अपने जगह को खड़ा करना। अब देखो बच्चा सब के सब पहली सफ में बैठना, ख्वाहिश कर लेता, और पर वो देखो मस्जिद में सानी इमाम की जगह कौन भी नहीं बैठता, हिम्मत भी नहीं करता। कई को तो कहते हैं हुआ वक्त के ऊपर मुझे मालूम होना तो वही मसले है, इमाम साहब का वजन टूट गया, वैसा ऐसी हालत में इमाम साहब मुझे सामने रखो चले गए तो मैं क्या करना। ये मसले मसाइल मालूम नहीं सर जाकर सामने बढ़ गया बेचारा, तो हालत क्या होना, पूरी जमात इमाम साहब के ऊपर, इमाम साहब सानी इमाम के ऊपर, सानी इमाम मुझे नहीं मालूम भाई तुम्हें आओ सामने आना, ऐसे मामले। ये जो जगह है नहीं, मैं बताना चाहूँ से क्या, इमाम के पीछे खड़ने की जगह भी कितनी ज्यादा होने वाली, खड़ने वाला भी कैसा इल्म वाला था। इसके बाद क्या बोलते हैं, इमाम के साथ मेहतर मस्जिद में देखो मुफ्ती साहब है आसिफ उद्दीन साहब, उनके साथ सानी इमाम जो पहले इमाम थे उनको सानी इमाम बना दिए, इमाम की जगह पर खड़ने वाले पीछे सानी इमाम। अक्सर जामिया मस्जिदों में जो बड़े बड़े मस्जिद रहते उसमें इमाम के साथ सानी इमाम भी रखा जाता। वो सानी इमाम भी कैसे, ये मसले मसाइल उसे मालूम रहते, अगर वक्त आया तो इमाम का वजू टूट गया तो इमाम बाआसानी पब्लिक को परेशान करे नहीं सरकार, पूरे के सब को हौला नहीं बनाए सरकार, सबके सब रकात में खड़े सो है, इमाम साहब के मुसल्ले मसीह गायब हो गया, कैसा मालूम होना क्या नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। सानी इमाम की जगह, तो सानी इमाम जैसे इमाम की जगह पोएंगा, इमाम साहब दूसरे खड़ा करके फिर आगे को ऐसा कराते बाहर निकल देंगे, नमाज भी हो जाएंगी। ये सारे मसले हमारे को बैठ को सीखे तो समझ में आता। आखिर में एक बात बता देता हूँ, वो बात ये कि इंसान जब तक इल्म के करीब नहीं आता उसको एक रोशनी हिदायत वाला नूर उसे नसीब नहीं होता। ये जो मैं मसला बताया ना इशा के और असर के सुन्नत में 2 फर्क बोलते, ये सुन्नत मवक्किदा भी नहीं है, ये वाजिब भी नहीं है। अगर कोई इंसान कायदा उला में असर के और इशा के 4 रकात वाली नमाज सुन्नत में तशहुद के बाद उठकर खड़ा हो गया, भूल कर या जानबूझकर भी खड़ा हो गया तो उससे फर्क कोई भी नहीं पड़ता, ये सुन्नत है। इसीलिए
اس کو لائٹ لے لیا گیا، لائٹ لے لیا، اس کے اوپر پورا مسئلے کے اوپر زیادہ بحث کر دو. اگر اتنا کہ کمپلسری رہتا تو جمعہ کی نماز میں بحث کرتے تھے، مگر نہیں کرے. کیوں؟ یہ سنتوں میں آتا ہے، واجبات میں بھی نہیں آتا، نماز کے شرائط میں بھی نہیں آتا، فرائض میں بھی نہیں آتا. اگر بھولے سے تیسری رکعت کے شروع میں ثنا بھی پڑھنا بھول گئے ہم لوگ، تب بھی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سنن میں آتے ہیں، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات مجھے اور آپ کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے پہل ہمارے بیٹھنے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے پہل تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ السلام کی شریعت کو جاننے، پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.